See, duration of a bond means average time required to recover investment in bond. Yesterday we have done this. Now duration is calculated as under. Good. Duration is calculated as under what? First 1 into C1 plus 2 into C2 plus 3 into C3 plus 4 into C4 up to N into Cn upon price of the bond. Okay, that is present value, no? Where C1, C2, C3, Cn are present value of cash flows. What? Present value of cash flows in the year 1, 2, 3, N respectively. They are not cash flows, they are what? Present value of cash flows. Okay, C1, C2. Or follow this. Now, relationship between change in YTM, that is rate of return, and change in bond price, this will study. Okay. Now, you know that P is equal to, what is P? Price of the bond is equal to C upon what? P is equal to, now here I am taking, say, A1 upon 1 plus R. What is A1? Cash flows in the first year, because C I have taken present values of cash flows. A1 upon 1 plus R will be C1. Okay. A1 upon kya? 1 plus R will be C1. Yesterday we had done duration. You just see the problem. On duration we had done. What we did? We took present values. We arrived at the bond price. Summation of present values. No? And then we multiplied each present value with the number of years. 1, 2, 3 and so on or not. But what did we multiply? Number of years we multiplied by what? Present values. No? So here A1 is the cash flow. What? A1 is the cash flow. And A1 upon 1 plus R is the present value of cash flows. Okay. So this will become C1. What? Okay. Plus what? A2 upon 1 plus R square plus A3 upon 1 plus R cube. It goes on up to AN upon 1 plus
r raised to n. Getting this? Now change in YTM. Differentiate both sides with respect to r. That is change in r. Okay. तुम लोग को पता होगा, तुम लोगों ने किया होगा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 होता था, तो तुम लोग डेरिवेटिव क्या करते थे, dy बाय dx. दिस इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस 9 एंड dx. ऐसा होता था कि नहीं? याद है कुछ डेरिवेटिव्स? क्योंकि एग्जाम में जरूर मत पूछने वाले नहीं है. नाउ हियर you have differentiating both sides, so here you have dp upon dr. What? dp upon dr will become what? d of a1 into 1 plus r raised to minus 1 upon dr plus d of a2 into 1 plus r raised to minus 2 upon dr. This will go on this way, plus d3 into d into a3 into 1 plus r raised to minus 3 raised to what? dr. This will continue up to last क्या आएगा? d of an into 1 plus r raised to minus n upon dr. This is first part. Now the variable is r. Okay, so here dp by dr will be what? Minus a1 into 1 plus r raised to minus 2 डेरिवेटिव. मालूम है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या होता है? x रेज टू n. तो n यहाँ चला गया -1 और x 1 प्लस आर रेज टू व्हाट? -2. एक्चुअली ऑफ कोर्स ये r नहीं है, 1 प्लस आर है. प्लस 1 प्लस आर का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ही होता है. तो फिर उससे मल्टीप्लाई करने का होता है. दैट इज चेन रूल. माइनस 2 इंटू a2 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू -3 minus 3 into a3 into 1 plus r raised to -4 and it will continue so on. तुम लोग भी ना वापस लिखो ये पूरा ए करके, क्योंकि हमने कल सी करके लिख दिया था. वापस लिखो, कैंसिल दैट. ओके, बिकॉज टर्मिनोलॉजी में फर्क आता है तो फिर तकलीफ हो जाती है. बिकॉज C1 we have taken somewhere else cash flows and here actually we have to multiply present values. No, then C का confusion होगा. चाहे लिखो, नो प्रॉब्लम. वैसे भी 2 बार करेंगे तो ही समझ में आएगा. ये आंसर आएगा उसका फिर डेरिवेटिव है. दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड. दिस इज ओनली जस्ट टू शो द रिलेशनशिप. क्या होता है ऐसे, कोई ड्यूरेशन क्या होता है अभी इसे मान लेने की बात नहीं है, जान लेने की बात है. ठीक है.
Okay. Follow this. Next page. Okay. P is equal to, we have taken A1. A1 is a cash flow, then C1 is the present value of cash flows. Okay. It's just example. Yeah, this is just an example. Okay, of derivatives, and it has nothing to do with the derivatives which you are going to study in capital markets. That is much easier than 12th standard maths. 12th में तुम लोग इतनी मैथ्स करके आओ, इतनी सारी, ये क्या है, कुछ भी नहीं तुम लोग के सामने. तुम लोग तो sin x का डेरिवेटिव भी निकालते थे, cos x, cos 2x, ना, डेफिनेट इंटीग्रल भी निकालते थे. इंटीग्रेशन तो सांप की तरह लगता है कि नहीं से, किसानी स्नेक की साइन है ना, से नाग देवता. ये लास्ट में क्या आएगा, माइनस एन ए रेज टू एन 1 प्लस माइनस एन माइनस माइनस ए अपॉन अब है ना, तुम लोग क्या करो, हो गया आगे, नीचे ले लिया. अब ये ना माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर को कॉमन ले. So what do you get? A1 upon plus 2A2 upon plus 3A3 upon 1 plus R raised to 3, and then plus N into ये क्या आया, ये तुम लोग याद है क्या आ रहा है, दिस इज A1 upon 1 plus R is C1, this is C2, so this is, you get dP upon dr is minus 1 upon 1 plus R raised to into 1C1 plus what, 2C2 plus 3C3 up to NCN.
Okay, where C1, C2 are the cash flows, I have changed the terminology. Okay, अभी क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, नहीं, डिवाइड बोथ साइड बाय पी, क्योंकि इधर है ना, ये खाली इससे ड्यूरेशन नहीं आएगा, ड्यूरेशन किससे आएगा, डिवाइड बाय पी. ओके, लास्ट टाइम वो टर्मिनोलॉजी गलत ले ली तो ना, dividing both sides by P. So you have here dP by dr into 1 by P is equal to minus upon 1 plus R into 1 C1 plus 2 C2 plus up to अपॉन पी. ऐसे चलेगा ना? तो ये क्या हो गया पूरा, ड्यूरेशन. तो dp बाय dr इंटू 1 बाय पी इज इक्वल टू माइनस अपॉन 1 प्लस r इंटू डी. दिस बिकम्स ड्यूरेशन. अब है ना, यहां पे dp बाय p करो, क्या करो, dp बाय p इज इक्वल टू माइनस d अपॉन 1 प्लस r इंटू डी आर. follow this. अब है ना, ये dp बाय, सी dp इज व्हाट, चेंज इन प्राइस एंड p इज ओरिजिनल प्राइस. इट मीन्स dp बाय p will be percentage change in price. Of course we have not multiplied by 100. okay, मतलब अगर 5% चेंज आएगा तो 0.05 आंसर आएगा, है ना. ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस है कि नहीं. सपोज प्राइस वाज 400, नाउ इट इज बिकम 410. तो 410 अपॉन 400 कितना आएगा, 10 अपॉन 400 करो, 0.025 है ना, मतलब ये 2.5% हुआ कि नहीं. इफ यू मल्टीप्लाई बाय 100 तो प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, दोनों को. ओके, देन तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 1 प्लस आर इंटू डी आर. डी आर क्या है, चेंज इन ITM. चेंज इन व्हाट, ITM. अब है ना, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड ड्यूरेशन. क्या, d अपॉन 1 प्लस आर, माइनस छोड़ दो. ओके, मॉडिफाइड ड्यूरेशन. तो लास्ट में आंसर आता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू नेगेटिव मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटू डी आर. ये लास्ट फॉर्मूला ये बन जाता है. इट मीन्स इफ डी आर चेंजेस बाय 2%. अब इसका मतलब क्या है, हाँ पहले ये फॉर्मूला लिख दो.
For this, suppose duration is 4. What? Duration is 4. तो and rate of discount is 6%. तो modified duration क्या आएगा? 4 upon 1 plus 0.06. तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? Modified duration. वो इससे चेंज होता है. Suppose this is changing by 1%. What? 1 minute. I'll take example. See here. एग्जाम्पल के बगैर कुछ समझ में नहीं आ सकता है. See here. If example value of a bond, that is price, is rupees 1069. कितना प्राइस है इसका? And YTM is 6%. that is R क्या है? 0.06. Follow this. Now duration of a bond is say 4.1 years. कितना है? Duration of a bond is 4.1 year. ये ड्यूरेशन है आपका. Now यहाँ पे क्या होगा? 6% डिस्काउंट किया है. Now if YTM changes to 8%, मतलब बढ़ गया है, that is 0.08. It becomes what? 0.08. अब इसका मतलब क्या है? अच्छा मुझे बताओ, अभी क्या हो गया? People expect 8% now. इसका मतलब ये 6% और 8%, इसका मतलब ये नहीं कि कूपन रेट चेंज हुआ है. सो ये ना, पहले लोग क्या सोचते थे कि ये जो बॉन्ड कैश फ्लो दे रहा है कि नहीं, वो कितना परसेंट पे डिस्काउंट किया? 6% पे डिस्काउंट किया. और प्राइस कितनी आई? 1069. नाउ दे आर टेलिंग 6% तो बहुत कम है. वो तो पहले जमाने की बात है. अब हमको कितना मिलना चाहिए? 8%. You tell me, bond value will rise or fall? Fall होगा ना. अभी लोग 8% दे रहे हैं, हमारा तो 6% वाला ही है. हम तो 6% तक रिटर्न दे रहे थे पहले प्राइस के हिसाब से. तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी. अब कितनी कम हो जाएगी वो देखना पड़ेगा. हाँ, YTM changes to what? 8%. Okay. Now duration, modified duration क्या होगा? Will be 4.1 upon 1.06. कितना आता है? बताओ, मेरा कैलकुलेट करना. 3.86. आगे बोल. और 3.867 8679 ले ले बस. कोई बात नहीं, जब इतना बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन राउंड ऑफ. यू ऑल नो, इतना तो मानो तुम लोग. अच्छा अब है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी माइनस डी, कैलकुलेटर अपॉन 1 प्लस आर, है ना, into what? dr. Now what is minus d here? What is this? This नहीं, ये क्या है? minus 3.8679 and dr कितना था? 0.02. मल्टीप्लाई करके बताओ. 7.6 कुछ आएगा. 7.7.
बस हो गया। ओके, इतना चेंज होगा, कितना परसेंट चेंज होगा, मतलब दैट इज 7.7%। माइनस होगा कि नहीं, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी व्हाट, बॉन्ड प्राइस will fall by -7.7%। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 1069, और क्या होगा बाद में, फॉल। आया समझ में, बॉन्ड की दास्तान समझ में आई तुम लोग को, पूरी स्टोरी। अब ये जो है ना, इसका जो आंसर आया था ना, इसको फिर डेरिवेटिव करते हैं, इसका फिर डेरिवेटिव सोचो, रीमेक करते हैं ना, जैसे क्या बनाते हो लोग, पहली पार्ट 2 क्रिस 3 ऐसे, फिर डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो फिर मिलती है कॉन्वेक्सिटी, क्योंकि ये आंसर परफेक्ट नहीं आता है। ओके, ये ना पूरा एकदम बराबर नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर, तो एकदम आंसर लाने के लिए लोग क्या करते हैं, here we assume linear relationship, what linear relationship, anyway that we'll do later on।